Good morning, student. Good morning, sir. Okay. Today we'll be starting. First of all, congratulations for doing well in your 10th standard. Okay. And we also hope, yes, Thank you, sir. धन्यवाद sir. okay, and hope that you'll also be doing well in your 11th standard and also in your 12th standard. And to keep that performance, that increasing, you have to always keep on studying regularly. Means whatever we do it today, like your job is what? Do revision of that topic on that day itself. Okay, so today I'll start with one chapter from chemistry, that is structure of atom. Now total for chemistry with 3 teachers are there. Okay, so we have divided chapter among ourselves and I'll be doing chapter structure of atom. Now structure of atom here, the first scientist, almost around 1808. One scientist was there and his name was Dalton's. The name of the scientist is Dalton's. And he was there, or his work was, he did the work in 1808. Now what is his main concept? The Dalton ka main concept kya tha? Dalton said that, the very first point he said that every matter is made up of small indivisible particle. एवरी मैटर मतलब आप नेचर में से कोई भी मैटर लो, कोई भी चीज लो, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, एक मतलब जो भी हमारा मैटर है वो स्मॉल चीज से बना हुआ है, और जो भी कुछ है स्मॉल, वो कैसा इंडिविजिबल पार्टिकल है. सो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल एंड दैट स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ एटम. ओके, मतलब वी कैन से कि हमारे पास जो भी मैटर है वो मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है. और ये एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल. ओके, एक्चुअली अगर ये हमारा जो टर्म्स है, इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक, और उसमें क्या था? एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल. तो इसलिए उन्होंने मतलब जो हमारा इंडिविजिबल का मीनिंग है एटम, करेक्ट, और एटम या मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम ही है. तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आई सेड कि डाल्टन्स का एक कंसेप्ट था कि हमारे पास जो भी मैटर है, the matter is made up of a very small particle, और जो भी small particle से matter बना हुआ है, we can call them as what? Atom. Correct. And these atoms are indivisible. मतलब इस atom को हम लोग divide नहीं कर सकते. इसका मतलब atom is the smallest. Atom is the smallest particle of matter. Atom is the smallest particle of matter. मतलब हमारे मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम्स है. एटम से और कोई भी स्मॉलर पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. डाल्टन्स का मेन कंसेप्ट था. सेकेंड पॉइंट डाल्टन्स ने क्या बोला? और नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, all atoms of the same element are identical. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम एलिमेंट लिया, सोडियम, तो वी नो दैट सोडियम एलिमेंट is made up of small atom. सोडियम एलिमेंट is made up of small atom. मतलब बहुत सारे एटम, तो ये एटम है, ये दूसरा एटम है, तीसरा एटम है. सोडियम एलिमेंट is made up of small atom, and all atoms of the same element have identical properties. Identical property like what? Mass, mass, charge, everything. So here अगर मैंने सोडियम एलिमेंट अगर लिया, तो सोडियम एलिमेंट जिस एटम से बना हुआ है, all these atoms are having what? Identical properties. Next, fourth point,
all atoms, सर हे लिहायचंय का आता? all atoms of different elements, all atoms of different elements have different properties. See, like for example, अगर मैंने दो अलग अलग एलिमेंट ले, like for example, one element I have taken here as a sodium element, and other element I have taken here as a magnesium element. दो अलग अलग एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट के जो स्मॉल स्मॉल एटम्स है, ये सोडियम के एटम्स है, और यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पार्टिकल मैग्नीशियम के एटम्स है. लेकिन अभी मैंने क्या देखा कि ये सोडियम के अगर फॉर एग्जांपल 4 एटम्स है, तो इनके सारे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे. मैग्नीशियम के जो 4 एटम्स है, इनके सारे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे. लेकिन अगर मैं सोडियम के एटम्स के, अगर ये सोडियम के एटम्स है, इनके प्रॉपर्टीज अगर मैग्नीशियम के एटम के साथ कंपैरिजन करूंगा, तो उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगे. मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ, what is the point I have said? All atoms of different element. मतलब ये एटम सोडियम्स के हैं, ये एटम मैग्नीशियम्स के हैं. So all atoms of different element have different properties. मतलब सोडियम के जो एटम्स है उनके प्रॉपर्टीज और मैग्नीशियम के जो एटम्स है उनके प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगे. मतलब अगर इनका मास फॉर एग्जांपल 2 ग्राम है, तो इनका मास 3 ग्राम रहेगा. मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, तो प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट. सो व्हाट वी हैव सेड इन द पॉइंट नंबर 3 and 4, atoms of all the atoms of the same element will have the similar properties. मतलब सोडियम के सारे एलिमेंट्स, सोडियम के जो सारे एटम्स है, मतलब सोडियम जिनसे बना हुआ है, उनके सारे एटम्स के प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे. लेकिन अगर हमने दो अलग अलग एलिमेंट अगर लिए, तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स रहेंगे, उनके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कैन neither be created, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created or nor be destroyed. एटम को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट यू नो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम. मतलब एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? रीअरेंज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, recombinations कर सकते हैं. So atom can neither be created nor be destroyed, but atom can always reorganize. Atom can always reorganize. मतलब कैसे? देखो for example next point, see here, chemical reaction involves reorganization of atom. Your voice is breaking. Maybe your network is not proper, just check. What about other student? Sir, your network is showing in yellow. Sir, it is clear. Sir, it is showing red. Sir, yeah, in between your network is yellow. Okay, 1 minute. I just wait for a minute. We'll see. Yes, now can you able to hear me clearly? Now it's white. Sir, again it is yellow now. See now here on my side, I am also seeing on the other laptop, it is showing white light. Okay, okay. We'll wait for a few minutes. No problem. Okay, now can you able to hear me clearly? Those who are not able to. Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Okay, okay. Thank you. Now see here we say see when you perform chemical reactions, the chemical reactions involves reorganization of atom. Reorganization of atom.
Now what is the meaning of reorganization of the atom? See here, because हमने पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा फिर? तो एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटम कैन बी रीऑर्गेनाइज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे देखो, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा, सपोज फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग carbon combined with oxygen, and we know the carbon combined with the oxygen to gives you what? Carbon dioxide, correct? तो यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले अगर देखोगे लेफ्ट साइड में कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। राइट साइड में कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में है सेम एलिमेंट हमें राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा है क्या कि आपको यहाँ पे कार्बन दिखाई दे रहा है लेकिन राइट साइड में कार्बन नहीं है? नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ऐसा है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हुआ ही नहीं, हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है या लेफ्ट साइड में जो एटम्स है वही एटम हमें राइट साइड में भी दिखाई देंगे। द एटम विच वी आर एबल टू सी ऑन द लेफ्ट। कौन से एटम हमारे पास लेफ्ट साइड में है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो राइट साइड में भी हमारे पास कौन से एटम्स आएंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा, मतलब कोई आप इनऑर्गेनिक का रिएक्शन लो, आप ऑर्गेनिक का रिएक्शन लो, कोई भी रिएक्शन लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो लेफ्ट में एटम नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन राइट में आ रहा है। ऐसा तो एटम जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही राइट साइड में रहेगा। खाली इन एटम को हमें क्या करना पड़ेगा? इस एटम को हमें क्या करना पड़ेगा? रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइज मतलब उनका प्लेसेस चेंज करना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, तो रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, करेक्ट? तो जैसे C+O2 कंबाइन क्या मिला? CO2 मिला। तो ये हमारी डाल्टन्स की थियरी थी। तो एक बार वापस हम लोग देखते हैं कि डाल्टन्स के क्या क्या पॉइंट्स थे, डाल्टन ने क्या क्या सोचा था। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट डाल्टन सेड? एवरी मैटर, मतलब हमारे पास जो भी मैटर है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। मतलब हर एक मैटर जो हमारा है वो स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है, वो एटम है। ओके, दैट मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मतलब हमारे पास कोई भी अगर चीज रहेगी, हमारे पास कोई भी अगर वस्तु रहेगी, वो किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। और एटम को हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट? देन व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आप ले लोगे तो इस एलिमेंट के सारे एटम के प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर ले लिए तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स रहेंगे उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एट और दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, हम लोग जो केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम। मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शंस में एटम्स को खाली क्या करते हैं? रीऑर्गेनाइज करते हैं। और ये हमारा डाल्टन्स थ्योरी था, करेक्ट? और ये डाल्टन्स थ्योरी जो है, जो डिस्कवर मतलब कभी स्टार्ट हुआ था? ऑलमोस्ट थ्योरी था 1800 में आया था, 1808 में आया हुआ था। एंड दिस थ्योरी वाज देयर ऑलमोस्ट फॉर 100 ईयर। मतलब ये जो हमारा थ्योरी है 100 साल तक चला ऑलमोस्ट। और उसके बाद और मतलब 100 साल तक, मतलब 100 इयर्स तक लोगों ने एज्यूम किया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 100 इयर्स के बाद द नेक्स्ट साइंटिस्ट केम एंड द नेक्स्ट साइंटिस्ट, 1 मिनट, the next round, you know, that the scientists came and they thought कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होगा, एटम्स के अंदर और कुछ तो होना चाहिए। ये उन्होंने कैसे सोचा? मतलब सबसे पहले साइंटिस्ट था फैराडे। फैराडे ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए। और यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी आपने सुना होगा इबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड। व्हेन इबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड रब विद द सिल्क, यू नो, द चार्ज डेवलप ऑन द इबोनाइट रॉड। तो मतलब फैराडे जो साइंटिस्ट था उसने से मतलब एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था कि एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है, एलिमेंट्स के ऊपर या मैटर के ऊपर क्या है? चार्ज है। तो ये सब साइंटिस्ट सोच रहे थे कि मैटर के ऊपर चार्ज है। इसका मतलब जो हमने एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला गया है,
जो एटम हमारा सबसे स्मॉल पार्टिकल्स है वो स्मॉल नहीं है, एटम्स के अंदर भी और कुछ रहेगा, एटम भी और कुछ चीजों से बना हुआ रहेगा. एंड देन दे थॉट कि देन दे फर्स्ट पार्टिकल है, द साइंटिस्ट कॉल्ड एज J.J. Thomson. J.J. Thomson. So actually we are going for the heading here. The atom is not the smallest particle. Atom भी और smaller particle से बना हुआ है. और सबसे कौन से smaller particle है, मतलब आज हमें मालूम है लेकिन वो टाइम पे मालूम नहीं थे. कौन से smaller particles है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मतलब ये डिस्कवरी, मतलब ऑफ कोर्स ये कभी पता चला, डाल्टन्स ने अपना थ्योरी प्रेडिक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 100 इयर्स तक इस कांस्टेंट रहा कि डाल्टन्स ने, लोगों ने एज्यूम कर लिया कि डाल्टन ने बोला है एटम स्मॉलेस्ट है, उससे और स्मॉल कुछ नहीं हो सकता. लेकिन आफ्टर 100 इयर्स के बाद मेनी साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन, उनको पता चला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम भी और स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है. एंड दिस स्मॉल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन तब उनको नाम नहीं मालूम थे, लेकिन उन्होंने स्लोली डिस्कवरी स्टार्ट किया. तो हमारा सबसे एक पहला साइंटिस्ट है J.J. थॉमसन. और J.J. थॉमसन ने क्या किया, ही डिस्कवर, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. और कैथोड रेज का डिस्कवरी करने के बाद ही उन्हें पता चला कि कैथोड रेज से उन्हें क्या पता चला, एंड दैट डिस्कवरी लीड्स देम टू व्हाट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब J.J. थॉमसन ने कैथोड रेज डिस्कवर कर दिए और कैथोड रेज से डिस्कवरी करने के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन है पता चला. और ये डिस्कवरी ऑलमोस्ट कभी हुआ था, ऑलमोस्ट अराउंड 1896. देखो मतलब 1896 में J.J. थॉमसन ने बताया. अभी सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज कैथोड रेज, ये कैसे डिस्कवर किए गए. तो कैसे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज कर दिया, डिस्चार्ज ट्यूब. Now what is discharge tube? I'll draw a diagram here. The diagram I can draw it here, that is एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, मतलब ये ग्लास ट्यूब है. Okay. In this tube there are two electrode. में भी मालूम रहेगा, इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे दो. एंड द टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज. Like this electrode is called as a cathode. Cathode is negative. This electrode is called as anode. Anode is positive. And cathode and anode are connected to a very high voltage. High voltage. It is connected to negative of the battery, and this is connected to the positive of the battery. Okay, and then in this tube, the tube ये हमारा hard glass tube है. This is hard glass tube. This tube is connected to a vacuum pump. यहाँ पे pump है. This is called as a vacuum pump. And then here in the tube is filled with some gas. The tube is filled with the some gas. तो यहाँ पे क्या है, देखो हार्ड ग्लास ट्यूब है. हार्ड ग्लास ट्यूब है. ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड है. वन इज कैथोड. कैथोड इज नेगेटिव and anode is positive. Cathode is negative, anode is positive, correct? And then this tube is connected to a vacuum pump. Tube is connected to a vacuum pump, correct? अभी वैक्यूम पंप यहाँ पे क्यों है, देखो वैक्यूम पंप यहाँ पे है क्योंकि हमें अंदर प्रेशर मेंटेन करना है. तो यहाँ पे जो वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप मतलब हमारा वैक्यूम क्लीनर. जैसे हम वैक्यूम क्लीनर
स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अंदर से क्या लेगा, गैस या एयर को खींच लेगा, तो अंदर क्या क्रिएट होगा, मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा। अंदर वैक्यूम मतलब अंदर कुछ एयर है या गैस है, तो पहले हम लोग एयर को अंदर से निकाल देंगे, और एयर को अंदर से निकालने के बाद अंदर क्या फिल कर देंगे, गैस फिल कर देंगे। लेकिन इस गैस का जो हमें प्रेशर मेंटेन करना है, वो प्रेशर बहुत ही लो मेंटेन करना है। मतलब अंदर जो गैस है, गैस का प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए। लो मतलब ऑलमोस्ट कितना, तो लो मतलब इट शुड बी अराउंड 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अंदर प्रेशर कितना रहेगा, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब कितना, तो देखो नॉर्मली अगर हम लोग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रेशर कितना है, देखो 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब हमारे आजू बाजू में कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना हुआ, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मतलब अगर मर्क्यूरी कॉलम का हाइट मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 760 मिलीमीटर। यहाँ पे उन्होंने ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर लिया हुआ है, 0.001 मिलीमीटर, मतलब बहुत लो प्रेशर है। और लो प्रेशर उन्होंने कैसे एडजस्ट कर दिया, तो प्रेशर दे हैव एडजस्टेड बाय यूजिंग व्हाट, वैक्यूम पंप। जब पंप ऑन करोगे तो पंप अंदर क्या क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं चाहिए, थोड़ा तो प्रेशर चाहिए, इसलिए थोड़ा सा गैस है, लो प्रेशर। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। और यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया तो नियरली कितना वोल्टेज है, देखो 10,000 वोल्ट है। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है 10,000 वोल्ट है। तो एक बार वापस कंस्ट्रक्शन देखो, व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारा हार्ड ग्लास ट्यूब है, करेक्ट, ग्लास ट्यूब है। ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। 1 इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज अ कैथोड एंड अदर इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज अ एनोड। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने हाई वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया है, एंड दिस वोल्टेज इज नियरली अबाउट 10,000 वोल्ट, करेक्ट। एंड देन द इनसाइड द ट्यूब इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम अंदर क्या क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। मतलब पहले हमने पूरा एयर निकाल दिया, और एयर निकालने के बाद अंदर गैस फिल कर दिया, लेकिन ये गैस का प्रेशर हमें बहुत लो चाहिए था। तो ये वैक्यूम पंप से हम लोगों ने अंदर कितना प्रेशर मेंटेन कर दिया है, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ये हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जब यहाँ पे प्रेशर लो करने लगे, मतलब पहले थोड़ा प्रेशर लो था, तो यहाँ पे गैस था, तो गैस थोड़ा ग्लो हो रहा था। गैस क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। गैस ग्लो हो रहा था मतलब गैस चमक रहा था, हमें दिख रहा था कि गैस ग्लो हो रहा है। बाद में उन्होंने और प्रेशर लो कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में मे बी उन्होंने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया, तो उन्हें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाद में मे बी उन्होंने प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर किया, 0.1 एटमॉस्फेयर कर दिया। स्टार्टिंग में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। बाद में प्रेशर 0.1 मिलीमीटर कर दिया, तो कुछ ग्लो दिखाई दिया। और प्रेशर कम कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे उनको रेज दिखाई दे, रेज ऐसा बीच बीच में स्पार्क दिखाई दे रहे। लेकिन ये जो रेज थे, ये जो नॉर्मल रेज उनको दिखाई दे रहे थे, वो रेज कैसे थे, द रेज वर इनविजिबल रेज। इनविजिबल मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, मतलब बीच बीच में ऐसा स्पार्क लग रहा था, लेकिन इतने विजिबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये रेज को नाम क्या दिया, इनविजिबल रेज दिया नाम। लेकिन यहाँ पे रेज जा रहे, उनको कैसे पता चला, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमारा एनोड है, ये एनोड है, एनोड के पीछे यहाँ पे एक मटेरियल लगा दिया, एक मटेरियल यहाँ पे लगा दिया था, एंड द नेम ऑफ दैट मटेरियल इज जिंक sulfide, and zinc sulfide is called as a fluorescent material. Zinc sulfide is called as a fluorescent material. Now what is the meaning of the fluorescent material? कि इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से जो रेज मतलब जो कैथोड से निकल रहे हैं और ऐसे यहाँ तक जा रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें कैसे पता चला कि रे कैथोड से लेके एनोड के पास जा रहे हैं। तो उनको क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा ट्यूब था, जो हार्ड ग्लास ट्यूब है, जो एनोड के पीछे, उसके किसका कोटिंग दिया था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग दिया था। और जिंक सल्फाइड जो हमारे पास है, कौन सा मटेरियल है, जिंक सल्फाइड जो हमारा कौन सा मटेरियल है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो फ्लोरोसेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर ये रेज यहाँ पे अटैक करेंगे,
ये रेज यहाँ पे आके अगर गिर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा चमक जाएगा, मतलब तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्राइट बार बार आपका स्पार्क मिल रहा है, बार बार आपको यहाँ पे ब्राइट कलर मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्राइट कलर मिल रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जो रेज है वो कैथोड से निकल के कहाँ पे आ रहे हैं, एनोड के पास आ रहे हैं, और एनोड के पास आने के बाद एनोड के पीछे जो है हार्ड ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर गिर रहे, स्ट्राइक हो रहे। तो इसे उन्हें पता चला कि अगर यहाँ पे बार बार ब्राइट कलर स्पॉट मिल रहा है, यहाँ पे अगर ब्राइट कलर स्पॉट मिल रहा है, मतलब रेज कहां से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं, और रेज अगर कैथोड से आ रहे हैं तो उन्होंने उनको नाम क्या दिया था, कैथोड रेज, उनका नाम दिया था कैथोड रेज, एंड दैट्स हाउ द कैथोड रेज गॉट डिस्कवर्ड। आई एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज द कांसेप्ट। देखो जैसे उन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कैथोड से स्टार्टिंग में मतलब मे भी प्रेशर थोड़ा हाई था, तो प्रेशर में भी लाइक फॉर एग्जांपल 1 मिलीमीटर में बोल सकता हूँ, 1 मिलीमीटर पे थोड़ा बीच में ग्लो दिखाई दिया। बाद में प्रेशर उन्हें 0.1 मिलीमीटर और कम कर दिया प्रेशर, तो उनको ऐसा रेज जाते समय दिखाई दे रहे। लेकिन और प्रेशर कम करने के बाद उन्हें क्या पता चला कि यहाँ पे एनोड के पीछे वाले साइड में कुछ कुछ एरिया जो है बार बार चमक रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि और वो चमक रहे हमें दिखने के लिए हमने क्या किया था, एनोड के ऊपर किसका कोटिंग दिया था, एनोड के ऊपर हम लोगों ने जिंक सल्फाइड का कोटिंग दिया था। और जिंक सल्फाइड इज विच मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। मतलब जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर कुछ भी रेज आके अटैक करेंगे या गिरेंगे तो हमें यहाँ पे ब्राइट कलर स्पॉट पता चला। तो फिर उन्हें यहाँ से पता चला कि अगर एनोड की तरफ अगर रे आ रहे, मतलब रे कहां से आ रहे, कैथोड से आ रहे, अगर रेज कैथोड से आ रहे तो उन्होंने उनको नाम क्या दिया, कैथोड रेज। तो इसी तरह हमारे कैथोड रेज डिस्कवर हो गए, because the rays are moving from cathode towards the anode, and that's why the rays are called as what, cathode rays, correct। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये रेज जो मतलब जो अभी तक उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कहां से आ रहे, ये रेज कैथोड से निकल के एनोड के पास आ रहे, इसके लिए उन्होंने नाम क्या दिया था, कैथोड रेज नाम दिया था। तो अभी हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी। तो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज हियर। तो सबसे पहले यहाँ पे थे दिस कैथोड रेज travel in स्ट्रेट लाइन। ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। तो उन्हें कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा, एक हार्ड ऑब्जेक्ट रखा, हार्ड। तो ये रेज यहाँ पे आके गिर गए, और यहाँ पे आने के बाद रेज ब्लॉक हो गए, तो ये ऑब्जेक्ट का शैडो उनको यहाँ पे मिल गया, ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे मिला। इसका मतलब लेकिन फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास अगर लाइट आके गिर गया और लाइट हमारे बॉडी के थ्रू पास नहीं हो रहा है तो हमारा शैडो आ जाएगा बाद में। यार अगर सनलाइट हमारे ऊपर आकर आगे गिर रहा है तो हमारा शैडो अपोजिट साइड में आ जाता है। तो वैसे उन्हें क्या पता चला कि जो रेज है, मतलब रेज अलाउड टू फॉल ऑन द मेट ब्लॉक, एक ओपेक ब्लॉक था, तो रेज यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर गिरने के बाद ये ब्लॉक का उनको यहाँ पे शैडो मिला, करेक्ट, शैडो मिला। इसका मतलब रेज अगर रेज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते तो रेज ऐसा ऐसा घूम के जा सकते थे, या ऐसे यहाँ से घूम के जा सकते, लेकिन नहीं जा रहे। तो इसका मतलब रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो कैथोड रेज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी उनकी क्या आई समझ में, कैथोड रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला, बिकॉज दे शोज और दे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस इन देयर पाथ। मतलब कैथोड रेज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऑब्जेक्ट का शैडो हमें उसके पीछे मिल रहा है, मतलब कैथोड रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट क्या था यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, इफ कैथोड रेज causes mechanical motion, cathode ray causes mechanical motion of small pinwheel
placed in their path. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड रेज causes the mechanical motion of the small pinwheel. मतलब कैसे हम लोगों ने किया, फिर यहाँ पे कैसा छोटा व्हील मतलब पंखा, जैसे हम लोग छोटा स्मॉल पंखा ऐसा रख दिया, स्मॉल पिन व्हील, अगर फॉर एग्जांपल ये है और छोटा छोटा सा व्हील है, ये व्हील है ऐसा रख दिया, फिर ये रेस को ये व्हील के ऊपर आ गए, तो रेस जब ये व्हील के ऊपर अटैक करे तो ये व्हील घूमने लगा, व्हील घूमने लगा, मतलब ये जो रेस है, ये रेस के अंदर क्या है, पार्टिकल है, और रेस के अंदर अगर पार्टिकल है तो जो पार्टिकल यहाँ पे अटैक करेंगे तो उनका एनर्जी व्हील को ट्रांसफर हो जाएगा और व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो अगर ये जो रेस है, ये रेस के अंदर पार्टिकल है, तो पार्टिकल को क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए व्हील क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज causes the mechanical motion of what, small pinwheel placed in their path। इसका मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा पिन व्हील अगर रख दिया और रेस को अगर उनके ऊपर अटैक करने के लिए, मतलब व्हील मूव हो रहा था, व्हील मूव हो रहा था मतलब क्या हो रहा था, पार्टिकल के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इसीलिए मतलब पार्टिकल आर इन द मोशन, मतलब इसका मतलब उन्हें फिर पता चला कि हियर हेंस इज द कैथोड रेज। सर व्हिडिओ थांबते मध्ये. So video is stopping and it is blur. तर तुमचा आवाज पण ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. प्रॉपर नसेल सर व्हिडिओ हा, 1 मिनिट, कॅन यू एबल टू नाउ हिअर मी प्रॉपर, आता मला ऐकू शकता तुम्ही, ऐकायला येतोय सर आता व्यवस्थित. व्हिडिओ खूप ब्लर आहे. हो सर. सगळ्यांना तसं दिसतंय का ब्लर? आता क्लिअर दिसतोय सर. ओके ओके, ठीक आहे, चालेल. मध्ये मध्ये व्हिडिओ थांबते. कदाचित नेटवर्क प्रॉपर नसेल म्हणून, नेहमी नसतं, आजच माहिती नाही कसं झालंय, पण ठीक आहे. जर एखादा पॉइंट जर मिस आउट झाला असतं मग तुम्ही युट्यूब वरती जाऊन तो व्हिडिओ बघा, मग चालेल. जर कुठला पॉइंट ऍट द एंड मला पुन्हा विचारा तरी पण चालेल, टॉपिक कम्प्लीट झाल्यानंतर. ओके, सो व्हाट इज सेकंड पॉइंट वी हैव सेड, कि कैथोड रेज causes the mechanical motion of the small pinwheel placed in their path। मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने अगर स्मॉल व्हील अगर रख दिया तो एक कैथोड रेज जो है वो व्हील के ऊपर अटैक करेंगे और व्हील मूवमेंट करने लगेगा। तो कैथोड रेज अगर यहाँ पे अटैक, मतलब ये जो रेज है, रेज के अंदर क्या है, पार्टिकल है, और रेज के अंदर पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। मतलब व्हाट आई कैन से हियर, देयरफॉर वी कैन से दैट कैथोड रेज possess kinetic energy and they must be material particle, they must be material मतलब कैथोड रेज जो है उनको पार्टिकल नेचर है, मतलब दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मतलब खाली वो रेज नहीं है, तो दे आर हैविंग व्हाट, पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन से कैथोड रे produce fluorescence when they strike on the walls of ग्लास ट्यूब। देखो, और यहाँ पे हमने देखा है कि जब कैथोड रेज है, जब कैथोड रेज यहाँ पे एनोड के पीछे जब आके गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एनोड क्या हो रहा है, सब ब्राइट कलर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनोड बार बार चमक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कैथोड रेज है, दे आर on the walls of the glass tube। The next property was
cathode ray are deflected in cathode rays are deflected in electric and magnetic field. मतलब जो cathode rays है they got deflected in which field? Electric and magnetic field. Electric and magnetic मतलब कैसे देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्लेट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया, और अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पे अगर मैंने निगेटिव चार्ज रखा, इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है निगेटिव, तो ये रेज नॉर्मली कैसे ट्रेवल करते, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेज जो है वो स्ट्रेट नहीं जाने के बाद यहाँ पे डाइवर्ट हो गए, इधर डाइवर्ट हो गए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हमें कैसे पता चला, तो हमने क्या किया, ट्यूब को यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड का कोटिंग देके रखा था, हमें यहाँ पे बार बार ऐसा मतलब ब्राइट कलर दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे रेज जा रहे थे, मतलब रेज कहाँ पे जा रहे हैं, द रेज आर गोइंग टुवर्ड विच फील्ड, पॉजिटिव, तो रेज आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फील्ड। इसका मतलब हमने दो कंक्लूजन मिले, तो कैथोड रे जो है दे वर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, they were deflecting on which side, positive side, and because they were deflecting on the positive side, that means they thought that the cathode rays are carrying which charge, negative charge। या उन्होंने ऐसे भी सोचा कि अगर वो कैथोड के साइड से आ रहे हैं मतलब उनका चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, कैथोड का चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, कैथोड रेज आर जो कैथोड रेज हमारे पास है उनका चार्ज कौन सा है, देखो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये कैथोड रेज के बारे में स्टडी करें हम लोग। ओके, तो अब एक बार वापस देखो, हमने कैथोड रेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज देखे। कैथोड रेज जो है दे ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये उन्हें कैसा पता चला कि अगर हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट अगर रख दिया और रेज अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आके गिर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, शैडो मिल रहा था। तो शोज दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, cathode rays causes the mechanical motion of the small pinwheel placed in their path। मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल व्हिडिओ अडकली परत। सर व्हिडिओ The स्टॉप. video is stopped. स्क्रीन पण गेली, सगळं गेलं। होतंय हळूहळू क्लिअर होतंय वाटतं। रेड कलर नेटवर्क सर. हो सर, मिनिट क्लिअर दिसतंय सगळं। wait for some time, wait for a minute. हाँ, ये सर करते like this, थांबा। ओके ओके, हाँ थोडा वेळ थांबूया आपण, थोडा वेळ थांबूया, एक मिनिट। हाँ सर आता क्लियर. Yes, is it clear now? Now it's clear sir. Okay, okay. Sir continue from second point. मूव हो रहा था, इसका मतलब क्या था, ये जो रेस है ये रेस परत के क्लिअर झालं। ओके Your network is showing in red color.
हा हो, जरा आजच sir. प्रॉब्लेम आहे. 1 मिनिट, खरं बऱ्याच दिवसांना पहिली वेळ असा प्रॉब्लेम झालाय, पण ठीक. परत व्हिडिओ अडकली. Hello, sir. हा रेकॉर्डिंग सर तुम्हाला पाठवतील, पण ठीक आहे, थोडा एक थांबा जरा, इंट्रो माझ्या साईड मध्ये रेड आहे. 1 मिनिट. पण आवाज पण नाही येत ना. हा हा येस. एक मिनिट, एक मिनिट, जरा थोडा होल्ड करा. So now it is clear. इट इज क्लिअर. नाही सर. हा सर क्लिअर झालं. क्लिअर झालं. हो. ओके, ठीक आहे, ऑल राईट. ओके. Okay. So what is third? Now we'll go over third point. What is third point? Cathode ray produces the fluorescence when they strike on the walls of the glass tube. मतलब ये जो cathode rays हमारे है, यहाँ पे जब मतलब एनोड के पीछे जब आ जाएंगे और यहाँ पे जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है. इसका मतलब they produce what? Fluorescence. Okay, so cathode ray produce the fluorescence when they strike on the walls of the glass tube. Next point क्या था? कैथोड रेज जो हमारे थे, दे वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कैथोड रेज जो है, देखो यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगर मैंने निगेटिव फील्ड अगर अप्लाई किया, तो कैथोड रेज क्या हो रहे थे? स्ट्रेट नहीं जा रहे थे अभी. तो कैथोड रेज वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड विच साइड? पॉजिटिव साइड. और कैथोड रेज अगर पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट हो रहे, मतलब कैथोड रेज का चार्ज कौन सा होगा? निगेटिव होगा. तो इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज. कैथोड रेज आर नेगेटिव. ओके, तो ये हम लोगों ने कैथोड रेज के बारे में कर दिया. नाउ आफ्टर दैट एक बार मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब क्यों? क्योंकि ट्यूब में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से रेज निकल रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसका नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, ट्यूब के अंदर क्या लिया था हम लोगों ने? गैस लिया था. अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट होता है, कैसे मालूम है? ओके, मैं बाद में बताता हूँ. अभी उसके बाद मतलब जे थॉमसन का जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उन्होंने और एक डिस्कवरी कर दिया. उन्होंने और एक डिस्कवरी क्या कर दिया था? उन्होंने क्या किया? चार्ज. ओके, उसके पहले उन्होंने यहाँ पे क्या किया? अलग अलग गैस को ट्राई कर दिया, अलग अलग गैसेस को ट्राई कर दिया. अलग अलग गैसेस लिए, मतलब हाइड्रोजन गैस लिया, हीलियम गैस लिया, नियॉन, अलग अलग गैस लिया. एंड कोई भी गैस लेने के बाद हमें क्या मिल रहा था? हमें एनोड के साइड में फ्लोरोसेंस मिल रहा था. मतलब एनोड के साइड का ही ब्राइट कलर मिल रहा था. इसका मतलब कोई भी गैस आप ले लो, आपको क्या पता चलेगा? कि रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कोई भी गैस. फिर थॉमसन ने और एक कंसेप्ट कर दिया. थॉमसन मेजर्ड चार्ज टू मास रेशो, charge to mass ratio of cathode rays. थॉमसन ने क्या कर दिया? थॉमसन measured the charge to mass ratio of cathode rays. मतलब यहाँ पे जो कैथोड रेज मिले थे, हर एक रेज का, हर एक कैथोड रेज का उसने क्या मेजर कर दिया? ये रेशो by using some experiment. He has measured the charge to mass ratio, and for every ray, for every particle, हमारा चार्ज टू मास रेशो कितना आ रहा था? 1.75 इंटू 10⁻11, 1.75 इंटू 10⁻11. और चार्ज किसमें मेजर करोगे आप? कूलम में. और मास किसमें मेजर करोगे? किलोग्राम में. तो इसका मतलब थॉमसन ने क्या कर दिया? यहाँ पे हमें जो अलग अलग पार्टिकल्स जो मिल रहे थे, हर एक पार्टिकल्स का क्या मेजर कर दिया? चार्ज टू मास रेशो. एंड उसके क्या पता चला? कि फॉर एवरी पार्टिकल, मतलब हर एक पार्टिकल के लिए उसका चार्ज टू मास रेशो कांस्टेंट था. मतलब उसने अलग अलग गैस ले लिए, उन्होंने अलग अलग कैथोड ले लिए, अलग अलग एनोड ले लिए. मतलब उन्होंने बहुत सारे, देखो ये कोई जो हमें मिल रहा है रिसर्च, ये वन टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं है. थॉमसन ने या बाकी के साइंटिस्ट ने बहुत बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया. उन्होंने अलग अलग कैथोड और एनोड ले लिए,
उन्होंने यहाँ पे अलग अलग गैसेस ले लिए और हर बार उनका जो चार्ज टू मास रेशो था, द चार्ज टू मास रेशो वाज रिमेन कांस्टेंट। वो कितना आ रहा था? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? चार्ज रेशो अगर उनका कांस्टेंट आ रहा था तो उन्होंने क्या कहा? द कैथोड रेज does not depend cathode rays does not depend upon the nature of gas and does not depends upon the nature of gas and the nature of cathode and anode. So cathode rays जो हमें मिल रहे थे, cathode rays हमें जो मिल रहे थे, that does not depends upon the nature of the gas. मतलब हमने कौन सा गैस यूज करे, लेकिन हमें cathode rays का मिल रहे हैं, तो उसका nature it also does not depends upon what? Nature of the cathode and anode. And also what second thing they observe? The charge to mass ratio, charge to mass ratio for all gases and for all types of cathode and anode were remains the same. See here, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या दो डिस्कवरी कर दिया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? अलग अलग टाइप के गैसेस यूज कर दिए, अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज करके कैथोड और एनोड। तो उसमें क्या पता चला? जो हमें कैथोड रेज जो मिल रहे हैं वो कैथोड रेज, और कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशियो जो हमें मिल रहा है वो चेंज नहीं हो रहा था। मतलब कोई भी गैस लो आप, कोई भी कैथोड लो, कोई भी एनोड लो, लेकिन ये रेशियो हमेशा क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था। ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा था, तो उन्होंने कैसा सोचा कि अगर हमने कोई भी गैस लिया, अगर हमने एनोड किसी भी मटेरियल से बना दिया, हमने कैथोड अगर किसी भी मटेरियल से बना दिया, इनका मतलब उनके अंदर कोई तो एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, कोई तो एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, और उस यूनिवर्सल पार्टिकल का चार्ज निगेटिव है, क्योंकि एक चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। अलग अलग गैसेस के लिए भी सेम आ रहा था, अलग अलग कैथोड और एनोड के लिए भी सेम आ रहा था। तो दे थॉट द ऑल मटेरियल हैज अ यूनिवर्सल पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। मतलब हम कोई भी मटेरियल अगर ले लेंगे तो हर एक मटेरियल में ऐसा एक कोई पार्टिकल है जो सब में पाया जाता है, सब में हमें मिल जाता है, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई दे थॉट दैट all material particles contains universal particle. Contains what? They contain universal particle and carrying नेगेटिव चार्ज। मतलब हर एक एलिमेंट में, हर एक गैस में एक ऐसा पार्टिकल है जो सब में हमें वो दिखाई दे रहा है और उसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और बाद में एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिनका नाम था लॉरेंस। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लॉरेंस, एंड लॉरेंस गिव द नेम टू दिस पार्टिकल। मतलब इन एवरी मटेरियल जो हमें पार्टिकल मिला था, उस पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव था। तो लॉरेंस जो साइंटिस्ट हमारा था, लॉरेंस, he named cathode ray, he named cathode rays as, और फिर उन्होंने उसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। कैथोड रे का नाम क्या दिया उन्होंने? The Lorentz has named the cathode rays as electron। तो ये पहले डिस्कवरी कैसे हुआ? मतलब सबसे पहले थॉमसन ने और एक एक्सपेरिमेंट मेजर कर दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि हर एक कैथोड रेज का क्या मेजर कर दिया? चार्ज टू मास रेशियो मेजर कर दिया। और हर एक पार्टिकल के लिए, मतलब कोई भी गैस लो आप,
हमारा कैथोड और एनोड का कुछ भी मटेरियल ले लो, कुछ भी, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए, लेकिन ये चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। जब चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे मटेरियल के अंदर कोई तो एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, मतलब कोई तो एक पार्टिकल है जो सब में पाया जा रहा है, और वो पार्टिकल सब में है, मिलेगा, कांस्टेंट है। और फिर हमारे एक साइंटिस्ट लॉरेंस है, उसने उस पार्टिकल का नाम क्या दे दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था R.A. मिलिकन। एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन, and R.A. Millikan, he performed one experiment called as what? He performed one experiment called as oil drop experiment. He performed an experiment called as what? Oil drop experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, और इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या मिला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला, और उन्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मिला? 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला। मतलब उन्होंने, उनका एक्सपेरिमेंट भी एक्चुअली कई बुक में दिया हुआ है, लेकिन हमें इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है। बट साइंटिस्ट का नाम क्या था? R.A. मिलिकन। एंड R.A. मिलिकन हैज स्टडीड विच एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप। एंड उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ये जो हमारा कैथोड रेज है, कैथोड रेज मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर क्या चार्ज होता है? 1.6022 into 10⁻⁻19। और मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये चार्ज हमारा नेगेटिव। तो अभी देखो यहाँ पे हमें, अगर आप नोटिस करोगे तो हमें चार्ज टू मास का वैल्यू मालूम है। ओके, अभी हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिल गया, कैथोड रेज का चार्ज भी मिल गया, तो हम कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला है? चार्ज टू मास। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, और मास इलेक्ट्रॉन का। चार्ज टू मास, करेक्ट? चार्ज टू मास। और व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशो? तो हमें मालूम है कि चार्ज टू मास रेशो का वैल्यू कितना था? 1 मिनट, आई जस्ट राइट ऑन द अदर पेज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? चार्ज टू मास रेशो, एंड ये रेशो कितना आ रहा था? 1.75 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। लेकिन R.A. मिलिकन को क्या मिला? इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिला, तो हमारे पास चार्ज भी है, तो उन्होंने चार्ज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हाट इज चार्ज वैल्यू? 1.6022 into 10⁻⁻19 divided by what mass? Equal to 1.75 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और फिर इन्हें सॉल्व करने के बाद, क्या मिला यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या मिला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गॉट इज इक्वल टू, दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच? 9.1094 into 10⁻31 kg। ये हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसी तरह हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिल गया, और इसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी मिल गया। लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग कितना लिखते हैं? 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम, और इतने सारे कूलम मतलब 1 यूनिट। तो व्हाट विल राइट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन? वी राइट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज E, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन का सिंबल E है, और 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम मतलब 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिखा। तो यहाँ पे हमें मीनिंग है कि 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज corresponds to how many unit? 1 यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है। लेकिन इस मास को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? AMU में। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट में मास कितना होता है? 0.0055 AMU। ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, या आपने फर्स्ट चैप्टर में आप स्टडी करोगे। ये किलोग्राम में, देखो किलोग्राम में बहुत ही स्मॉल नंबर है, तो इतना स्मॉल हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कौन से यूनिट में कंसिडर करते हैं? 0.00055 AMU,
एंड 0.0055 AMU मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिंबल है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1, -1 मतलब कितना, 1 यूनिट मतलब हाउ मेनी कूलम, 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम, और ये किलोग्राम में मास है, लेकिन किलोग्राम में इतना स्मॉल मास हम लोग मेजर नहीं करेंगे, तो इसमें किससे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, AMU, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, उसको और हम लोग खाली क्या बोलते हैं, U मतलब यूनिफाइड भी बोल सकते हो, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0, इसी से हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, करेक्ट। एक बार वापस रिवाइज करता हूं एंड देन विल स्टॉप। देखो सबसे पहले हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो क्लियर था, ओके। तो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो जे थॉमसन ने एक हार्ड ग्लास ट्यूब यूज किया था, ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड थे, कैथोड एंड एनोड, then inside the glass tube cathode and anode are connected to a very high voltage, and then the tube is also connected to the vacuum pump. The tube is filled with the gas and the pressure of the gas is maintained very low by using a vacuum pump, correct। यहाँ पे अंदर गैस है लेकिन गैस का प्रेशर बहुत लो है, कितना प्रेशर लो था हमारा, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, और यहाँ पे हाई वोल्टेज था, एंड द ट्यूब ये प्रेशर कैसे एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने, बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप। बाद में हमें क्या पता चला कि हमें एनोड साइड में, यहाँ पे एनोड के साइड में बार बार ब्राइट कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे ये पार्ट हमारा बार बार चमक रहा था, इसका मतलब कुछ तो रेज है जो कैथोड से आ रहे हैं और एनोड के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जो रेज कैथोड से आ रहे हैं एनोड के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब कैथोड रेज है, तो उनको नाम कैथोड रेज दिया गया। तो ये कैथोड रेज थे, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी की हम लोगों ने कि दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, देन दे कॉजेस द मैकेनिकल मोशन ऑफ द पिन व्हील प्लेस इन देयर पाथ। देन इसका मतलब कि जो कैथोड रेज है उनका नेचर पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर मतलब दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। Cathode rays produces the fluorescence when they strike on the walls of the glass tube. Cathode rays are deflected in the electric and magnetic field, and they are deflecting toward which side? Positive side, मतलब cathode rays का charge negative है। इसी के साथ, Sir, yes, can you please take us to give a screenshot of that paper? no, all this paper I'm sending it to you. I'll take the picture of all these pages, and I will send all the pages to you. Okay, sir. Thank you. As far as possible, during the lecture, don't write down anything. I will take the picture of all the pages and I will send it to you. And then from the pages, whatever thing you want to write in the notebook, you write it down. Okay. Theory part अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में जब आपको सेंड करूंगा तो न्यूमेरिकल लिख लो, मतलब न्यूमेरिकल लिखूं लिया। उसके बाद थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था। थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके क्या फाइंड आउट किया कि जो हमारे कैथोड रेज है उनका चार्ज टू मास, मतलब कैथोड रे के ऊपर चार्ज है, कैथोड रे के मास है, उनका रेशो कितना मिला उनको, 1.75 into 10⁻11। चार्ज किस में मेजर करोगे, कूलम में, मास किस में मेजर करोगे, किलोग्राम। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, थॉमसन ने क्या कर दिया, अलग अलग गैसेस यूज कर दिए, अलग अलग कैथोड यूज कर दिए, अलग अलग एनोड यूज कर दिए, लेकिन इतना सब चेंज करने के बाद ये रेशो चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब फिर उसने सोचा कि हमारे पास जो भी मैटर है, सब मैटर में एक कॉमन पार्टिकल हमें पाया जाता है, एक कॉमन पार्टिकल हमें दिखाई देता है, और उस कॉमन पार्टिकल्स को बाद में जो सब मटेरियल के अंदर आपको दिखाई देता है उसका चार्ज नेगेटिव है। बाद में एक साइंटिस्ट हमारे थे, उनका नाम था H.A. लॉरेंज। उन्होंने इस नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद एक और एक साइंटिस्ट आए, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो हमारे कैथोड रेज है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज कितना आएगा, 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। लेकिन ठीक है, चार्ज, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिल गया, करेक्ट। हमें इलेक्ट्रॉन का देखो चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू मालूम है, मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट कर दिया, मास। और ये इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में आ गया, लेकिन किलोग्राम में बहुत ही स्मॉल है, 10⁻⁻31 है। तो फिर उन्होंने किसमें मेजर कर दिया, AMU में। आप फर्स्ट चैप्टर जब करोगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सर बता देंगे कि किलोग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 0.0055 AMU, और AMU को आप क्या लिखते हो, U। AMU मतलब एटॉमिक
मास यूनिट और U का मतलब यूनिफाइड बट अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का सिंबल लिखते हैं, सिंबल क्या लिखेंगे E, और चार्ज माइनस मतलब this many coulomb is equal to how many unit, 1 unit, तो ये 1 यूनिट है, नेगेटिव है और मास निग्लिजिबल है। तो विद दिस हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। नॉर्मली इन द एग्जाम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कैसे मालूम है, चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने के लिए, चैप्टर को थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए, आने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स जो कैसे डिस्कवर हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अभी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मराठी विचारत तरी पण चालेल,